सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईटीएंस पे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स वीक 1 का वन शॉट। ओके, सो बने रहिएगा, लास्ट एक वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको समझ आया है कि नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या है? आप जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? Statistics is a mathematical body of science that pertains to the collection, analysis, interpretation or explanation and presentation of data or as a branch of mathematics. So statistics जो है आपका एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है डेटा के साथ। ओके, जो डील करता है डेटा के साथ। डेटा से क्या करता है? ये इंटरप्रीट करता है, कोई ग्राफ, कोई एनालिसिस, ये इंटरप्रीट करता है। इस इंटरप्रिटेशन को, इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। This interpretation, this interpretation, explanation, and representation of the data in pictorial form is known as statistics. Okay. Next देखते हैं types of statistics क्या होता है? Descriptive statistics and inferential statistics. So there are two types of statistics: description. I'm sorry, descriptive statistics and inferential statistics. Okay. Further, these descriptive statistics are divided into measure of central tendency and measure of variability. Okay. Then measure of central tendency is divided into mean, median and mode, which you may have studied in class 12th and 11th too. जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, mean, median, mode. And measure of variability क्या है? Range, variance and dispersion. Okay. तो ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। रेंज आपने रेंज वेरिएंस ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, राइट। एंड इन्फ्रेंशियल डेटा जो है ये हम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में देखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल डेटा क्या होता है। सो व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? Descriptive statistics refers to a set of methods used to summarize and describe the main features of a dataset, such as its central tendency, variability, distribution. These methods provide an overview of the data and help identify patterns and relationships. So what this text wanna refer? ठीक है, तो ये टेक्स्ट का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सपोज आपके पास एक डेटा दिया गया, राइट। आपके पास डेटा दिया गया, तो इसको आप इसको समराइज करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे इजी तरीके में। इसको समराइज करेंगे इजी तरीके में, एक ओवरव्यू लेंगे। हाँ, जैसे कि अब जैसे एक अंदाजा लगाते हैं ना, आप एक अंदाजा लगाते हो कि आज का मौसम ऐसा है, या फिर अगर कोई डेटा अगर हो गया। सपोज जैसे आपको एक क्लास का, सपोज क्लास का फिर तो मार्क्स आया, ठीक है, आपका क्लास में एग्जाम हुआ था, तो उसका स्कोर रिलीज हुआ, तो उसमें आप अंदाजा लगाते हैं ना कितने बच्चों का कितना आया है, कितने बच्चों का एवरेज क्या है, तो उससे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, सपोज द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ क्लास ए आर 70, 85, 90 and 65, and class B, which is referred to a second class, is 60, 40, 89, 96. Then the average marks of each class can be given by the mean as 77.5 and 71.5, 71.25. So here, what do they mean? This means that they are giving an overview of the data. Okay, तो डेटा यहाँ क्या है? डेटा इज दी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी। ठीक है, होप से समझ में आ गया होगा। ये चीज नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, so next let's go to inferential statistics. What do you mean by inferential statistics? Inferential statistics क्या होता है? Inferential statistics involves the use of sample. Sample क्या है आगे डिस्कस करेंगे। To estimate some characteristics in a large population and to test a research hypothesis about a given population. आपको इतना ध्यान रखना है, inferential statistics मतलब डिटेल समरी। ओके, what does inferential statistics mean? Inferential statistics mean that you are finding an in-depth knowledge of a data. You're trying to find out the in-depth presentation, in-depth interpretation of a data set given to you. Okay, to approximately estimate a population characteristic parameter, a random unbiased sample must be drawn from the population of interest. अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा डेफिनेशन, लेकिन आपको डेफिनेशन से आपको कम्युनिकेशन स्किल जो होता है इंग्लिश का वो आपका इजी होगा, तो आप जरूर ये पढ़िएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। You randomly select a sample of 12th graders in your state.
and collect data on their JEE scores and other characteristics. Suppose you are collecting, suppose you are collecting the names of the students of your state, okay? Then you are collecting the scores of the JEE means उनका जो JEE एग्जाम हुआ था आप उसका स्कोर कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? स्कोर कलेक्ट कर रहे हैं. You can use an inferential statistics to make estimates and test hypotheses about the whole population of 12th graders in the state based on your sample data. तो अब आप क्या कर रहे हैं कि suppose you take the names of the students of the whole state, okay? Then you select the sample. What does sample refer to here? Sample refers to the subset of a population. आप यहाँ से एक छोटा सा और एक ग्रुप निकाल रहे हैं, आप उसके बेसिस पे आप एक न्यू स्टडी कर रहे हैं जिससे उसका डेटा आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब वो है. अब सरल भाषा में आपको समझना है. In easy language, it can be said that suppose take a real life example. You all must have given some competitive exam, right? Either JEE, NEET और CLAT वगैरह, तो CLAT वगैरह भी हुआ होगा, ठीक है? You must have given these competitive exams. So your scores are released in percentile, right? आप लोग का स्कोर जो है वो परसेंटाइल में रिलीज होता है. उस परसेंटाइल में क्या रहता है? सपोज 90 परसेंटाइल किसने स्कोर किया. व्हाट डज दिस मीन? 90 percentile means that 90% students are below your marks, right? यही मतलब होता है. इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल डेटा. आप इसको इन डेप्थ जाके देख रहे हैं कि आपसे नीचे कौन है, आपसे ऊपर कौन है, राइट? You are interpreting a data where you are finding that how many students are below your score and how many percentage of students are above you, right? तो इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिटेल एनालिसिस इसे कहते हैं, ओके? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. इसको आप और अच्छे से समझिएगा. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? पॉपुलेशन. यहाँ देखिए पॉपुलेशन आपने लिया है, इसको पॉपुलेशन आप कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरिंग दिस एज अ पॉपुलेशन. देन यू टेक द सैंपल. व्हाट इज सैंपल? you are filtering out some of the students, some of the people from the population and making another group, okay? Inference statistics is applied on a sample of the population. आप एक पॉपुलेशन से एक अलग ग्रुप बना दिए, ठीक है? उसको सैंपल कहते हैं, ठीक है? देन आप क्या किए? द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इज फीचर्स. देन आप जो सैंपल निकाले हैं ना उसके बेसिस पे पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है? जैसे सपोज आप एक और एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. देन वी for easy interpretation we take suppose the population of population we take a sample, okay, in which we have people from all around states, okay? We have people from all states. Then we interpret any data, okay? Suppose that eye color, okay? Suppose that eye color or any type of data like what is their average age, okay? तो इसे आप डिटेल एनालिसिस के तरीके से जो करते हैं उसे आप इन्फ्रेंशियल डेटा कहते हैं, ओके? सो डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वो भी देख लीजिए. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स only describes certain characteristics of the data. What does descriptive statistics do? It describes only certain character, okay, such as नीचे देखेंगे. Whereas inferential statistics deeply analyzes statistical data and observation. ये डीप स्टडी करता है, ठीक है? Now the second point is descriptive statistics focuses on collecting, presenting and characterizing sample data, whereas inferential statistics predict the estimates population characteristic based on a sample data. इस लाइन का मतलब क्या है? What does this line mean? Descriptive statistics focuses on collecting, presenting and characterizing sample data. अब कुछ like summarizing, आप बस समझिए समराइज करता है ये, ठीक है? समराइज, ओके? Whereas inferential what it does, it
deeply analyzes and finds estimates. Okay. Descriptive statistics can be measured either numerically or graphically, whereas inferential statistics cannot be always measured in exact number. ये बहुत जरूरी चीज है। इससे क्या पता चलता है, आप कभी भी कोई भी एग्जैक्ट नंबर से आप कोई भी कुछ कर सकते हैं। आप कभी भी कोई भी डेटा आप निकालेंगे, आप कभी भी कोई भी गवर्नमेंट का डेटा निकाल दीजिए। गवर्नमेंट का डेटा इज मोस्ट ऑफ द टाइम एन इन्फ्लुएंशियल डेटा, ठीक है। उसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस नंबर होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? डेसिमल। ये डेसिमल में जो नंबर होता है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो उसमें डेसिमल एकदम एग्जैक्टली कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड, so that is an inferential data. Okay, for example, uh, let's go to the fourth point. Conclusion in descriptive statistics are confined to the provided data. Extending beyond is not possible. ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है ना, वो एक सैंपल का होता है, ठीक है। वो एक सैंपल का होता है और उस सैंपल के रेस्पेक्ट पे ही होता है। अब चाहें कि इसके बेसिस पे आप दूसरे एक तो डेटा को भी आप समराइज कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके। इफ यू थिंक दैट यू आर टेकिंग एन सैंपल and let us describe another sample which is of a different type on the basis of the first sample which you have taken, that is not possible, and that is not possible for a descriptive data. Okay, considering the inferential data, what it is written in inferential statistics, conclusions are limitless. Educated predictions are made based on the parameters of the given population. Okay, what does this mean? In inferential statistics, conclusions are limitless. अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपने एक डेटा लिया, ओके, फर्स्ट। अब इसके बेसिस पे आप दूसरा डेटा जो आप देख रहे हैं ना, वो भी सिमिलर होगा, ठीक है। लाइकली सिमिलर, आप उस पर भी ये जो एस्टिमेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई दी कंक्लूजन ऑफ अ फर्स्ट सैंपल टू अनदर सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, सपोज अगर आपने देखा होगा इन्फ्लुएंशियल डेटा, जैसे मैंने अभी कहा आपको, स्टेट वाइज जो होता है, स्टेट वाइज एज वगैरह जो होता है, आप एक तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ उस पर दूसरा जो डेटा होगा, दूसरा जो सैंपल होगा, उसमें भी ये इसके आसपास रहेगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आप वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वो तो समझ में आ गया होगा। सो अब देखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। पॉपुलेशन, द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इंटरेस्टेड इज कॉल्ड पॉपुलेशन. What is sample? Sample is a subgroup of the population that will be studied in detail. Okay. And data. What is data? Data are the facts, figures collected, analyzed and summarized for presentation and interpretation. Population of India. ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन। देन सपोज आपका ऑल ओवर शिप में कौन सी बीमारी चल रही है, आप सोचना है वो कौन सी बीमारी चल रही है, ठीक है। उसके लिए आप कुछ सैंपल लेते हैं हर एक स्टेट से, हर एक स्टेट से इंक्लूड रहता है। तो दैट, अब वो इंक्लूड रहता है। आफ्टर दैट इंक्लूजन, on the basis of this sample we find we interpret a data, ठीक है। we interpret a data which is applicable to all, ठीक है। इसको कहते हैं डेटा and this is called population, ठीक है। पॉप लिख देता हूँ, and this is called sample. Hopes you have understood. तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन? तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, आप इसका लिटरल मीनिंग से समझिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है जो कि स्ट्रक्चर में हो, ओके। दोज विच आर इजीली इजीली व्हाट कैन यू से, लाइक एनालाइज्ड, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होगा। अब घर में, आप सपोज आप घर में कोई सामान रखे हैं, ठीक है, आप एक जगह रखे हैं, ठीक है, अब उसको ढूंढने में इजी रहेगा, राइट। सपोज टेक ए एग्जांपल ऑफ योर होम। इफ यू हैव kept a certain, suppose you have kept a mobile on the table, okay, that will be easy for you to search for it, that will be easy for you to search for it. But if you have kept the mobile at places where you don't really keep, if you don't really keep, then there is a problem, okay. Then you will have some problem in searching the mobile, okay. So here, what is the first point? Fits neatly into a database.
here lacks a clear structure. That is quite analytical, I think. आप समझ रहे होंगे क्या है. Easy to retrieve and analyze. Need special tools to be useful. ठीक है. अब घर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें स्पेशल टूल क्या लगता है. आप अपनी मम्मी को लास्ट में जाके बोल दो कि मम्मी यार पूछ दो ये वाला चीज, बोलते हो ना, तो एक स्पेशल टूल है कि हाँ मम्मी को पता होगा कहाँ रखा हुआ है. तो आप उससे रिलेट करिए. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 3, गोज इनटू अ डेटा वेयरहाउस, रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स स्टोरेज. ठीक है. enables quick decision making, takes longer to analyze. ठीक है. use basic tools like spreadsheet, SQL and requires advanced tools like NLM. ये वाला भी आप स्किप कर दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. क्वांटिटेटिव इंसाइट्स, क्वालिटेटिव इंसाइट्स. ठीक है. आप ये लास्ट तीन को इग्नोर कर दीजिए, नो नो यूज ऑफ इट. ठीक है फिलहाल के लिए. लेकिन सबसे मेन है स्ट्रक्चर डेटा का, ही एनेबल्स क्विक डिसीजन मेकिंग, टेक्स अ लॉन्गर टू एनालाइज. ठीक है. आप सामान इधर उधर रखेंगे तो आपको खोजने में ज़्यादा देरी होगा, राइट. And if you keep the objects in place, then you will have a quick decision making that yes, that the object is placed out there, so I need to go there and take it, right. So here it is a there is a interpretation, pictorial representation which will make it easier for you to understand. Structured data, here you can see that the data is in structure. हम यहाँ देख सकते हैं जो डेटा है वो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है. तो यहाँ कुछ भी देखें बस स्ट्रक्चर, आपको यहाँ देखना पड़ेगा बस. हाँ हाँ ये चीज़ है, तो इससे समझ में आ जाएगी, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है. Now if you see the unstructured data, then what will you realize, what will you analyze and realize? That there is a main component, then there is a division here which seems really messy, right. जो आप देख सकते हैं वो मेसी लग रहा है बहुत, यहाँ इधर उधर कर रखा है, तो इससे डिफिकल्ट हो रहा है, राइट. इट्स फाइंड्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. ठीक है. लेकिन ये इजी हो रहा है. ठीक है. दिस इज इजी टू एनालाइज. What are the examples? Let's see the examples. Structured data includes names, datas, dates, addresses, credit card numbers, stock information, geolocation. Structured data is organized and easy for machine to understand. ठीक है. तो ये जो होता है ये मशीन के लिए इजी होता है समझने में. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एग्जाम्पल्स इंक्लूड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, मल्टीमीडिया कंटेंट्स, इमेज, वीडियोस, सेंसर डेटा, देन and more. Unstructured data is more difficult to categorize. It's difficult for both the machine and for the humans. Humans generally take time to analyze. Okay. दोनों के लिए डिफिकल्ट है. ठीक है. What does types of data? टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है. टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं. क्वालिटेटिव डेटा और कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव. ओके. normal and qualitative data is divided into normal data and ordinal data. Okay. And numerical data is divided into discrete and continuous. Okay. So here, what does this mean? I guess there is a problem here. It's not normal, it's nominal. Okay. एक गलती हुआ है, ये normal नहीं nominal है. Next, shift to the next slide. What does qualitative data and quantitative data mean? Qualitative data and quantitative data क्या होता है. Data type that consists descriptive statements is known as qualitative data. Quantitative data that can be measured and expressed numerically. This is the most important part of quantitative data. It should be in numeric value like 0, 1, 2, like numerical. ठीक है. Qualitative data is text based and quantitative data is number based. जो qualitative data होता है वो text based होता है and जो quantitative data होता है वो number based होता है. ठीक है. Qualitative data क्या होता है. Statically analysis is hard. Why it is harder? Because it is in text form. It becomes harder. It becomes difficult, right? क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ये समझने में डिफिकल्ट हो जाता है हमें. क्यों डिफिकल्ट होता है. आप खुद समझो कि आप कोई डेटा एक तो लिखा होगा उसको पूरा फुल पैराग्राफ में लिख दिया गया, आप समझ पाओगे वो चीज़.
कि हाँ भाई हमको अभी खोजना, हमको एक तो फास्ट इंटरप्रिटेशन करना है, तब समझ पाओगे। अब उसको पूरा पढ़ोगे तब आपको समझना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ये समझने में इजियर होता है, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, सपोज नेम लिखा है, उसका एज लिख दिया। नेम सपोज अमन, एज 54, ठीक है। एंड देन राहुल, एज 18। इसको समझने में इजी हो रहा है कि हाँ अमन का एज 54, राहुल का एज 18। अब यही सिमिलरली क्वांटिटेटिव में हम देखेंगे, क्वालिटेटिव में हम देखेंगे, यहाँ लिख देगा कि राहुल इज 54 years old, therefore बट, सपोज बट लगा देते हैं, राहुल इज 18। अब इसको पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ राहुल इज 18, ठीक है। अब इसको पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कि राहुल इज 54 एंड अमन इज 54 एंड राहुल इज 18। After you read the text, then you will understand, yes, that then you will understand what does the data you want to interpret. Whereas in quantitative, the data is arranged in structured form, which will help you to access the data, interpret the data easily. Okay, collected using qualitative data कहाँ collect होता है? Collected using interviews, written documents and observation. Okay. Quantitative data used collected by surveys, observation, experiments and interviews. Okay, hope से समझ आ गया होगा difference. Now see, categorical and quantitative. Categorical is also known as qualitative. कहा था qualitative, and quantitative is also known as numerical. दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है। ओके, इन द एग्जाम बोथ द टर्म्स कैन बी यूज्ड। डेफिनेशन फिर से, अब मैं वही चीज आपको बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो हर स्लाइड, 2-3 स्लाइड में आपको सेम चीज है। व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग टू यू दिस each and every time? Because these are very important. These concepts will help you in whole course. In for 4 years, these categorical, qualitative, many students have confusion in these two words. In the starting, I also had confusion, but yes, now I am capable to teach you. Okay. So definition: take on names or labels. Okay. Categorical data क्या होता है? Name and label कुछ होगा, वो है categorical. Okay. Quantitative क्या है? Numeric values. What are categorical data? Categorical data are the fields of name and labels, and whereas the quantitative data is the numeric value. Suppose, for example, we can take categorical data: marital status, smoking status, eye color, level of education. These all are categorical data. Whereas in quantitative data, the examples can be the height, population size, square footage, class size. Height can be measured in 150. हो गया. Population size can be measured, suppose India का 140 billion, right? Then square footage can be written as, suppose एक जमीन हो गया आपका 2 बीघा, बीघा स्क्वायर में बोला है, मतलब स्क्वायर फुट में देना होगा, and consider it in square foot. Okay. Then class size, the class strength is 50, 60, 200, like this. This is called quantitative. Whereas the marriage status can be said as married or non-married. Smoking status, smoker or non-smoker. Eye color can be brown, red, red नहीं होता है, I am sorry, black, blue. Okay. Level of education, can be as inter pass. Okay, or metric pass or degree. Okay, somewhat like that. These are categorical data, and these are which refers to numerics are known as quantitative data. So next, time series data. What do you mean by time series data? Time series data is a collection of data points recorded at regular intervals of time. The sequence of the data point is important because it helps to identify trends, patterns, seasonal variations. This is a very important part. Okay. Examples: weather records, economic indicators, patient health evaluation matrices are all time series data. आपको ये समझने के लिए इजी होगा, आप ये ग्राफ देखिए, 2 इमेज है इधर, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके दिसंबर तक दिया है। डेटा कैसे दिया है? यहाँ डेटा दिया गया है। ओके, ये एक आदमी का डेटा है। ओके, अब इसमें देख सकते हैं द टाइम सीरीज डेटा, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन दीज टू, इट्स डिफरेंस बिटवीन 1 month. ओके, एंड हियर ओनली the data of a person, data of a
person is given. Okay, only individual. Similarly, here in the time series plot of a trade, the trade, this is the amount and this is the month. What is the difference between the month? It's of 6 months, right? Here the difference between all the intervals is of 6 months. यूनिफॉर्म डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म डिफरेंस में इधर आपका जो डेटा है वो को इंटरप्रेट किया गया है एक ट्रेड का, ठीक है। एक कंपनी के ट्रेड का हो सकता है ये, उसका अमाउंट कैसे डिफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रेड का बात करो तो आपको समझ में आ गया वो टाइम सीरीज डेटा क्या है। व्हाट डज टाइम सीरीज डेटा मीन? टाइम सीरीज डेटा का दो चीज होता है, वन इंडिविजुअल ग्राफ इज प्लॉट, ओके। Second point is that the time interval is constant. Okay, these two are main things. Let's go to the cross-sectional data. Cross-sectional data. What is cross-sectional data? Cross-sectional data involves analyzing a data at a specific point in time, capturing multiple variables simultaneously. ठीक है। For instance, examining the GDP of different countries in a single year or comparing the financial statements of companies at a fixed rate are examples. कुछ नहीं समझ में आया है ना, मैं समझाता हूँ कैसे क्या करना। इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। ये डेटा एक पर आपको ये ड्यूरेशन है 1 साल का, ठीक है। 1 ईयर का ड्यूरेशन है। इसमें आपको बोला गया है कि सपोज आप दो कंट्री लीजिए, इंडिया एंड जापान, ठीक है। सपोज आप कंसिडर कर, आपका ये जो है आपका 1 ईयर में है, ठीक है। 1 ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना क्या हुआ है, जीडीपी उसका है, ठीक है। जीडीपी का ग्रोथ आप सपोज देख लीजिए, ये आपका इंडिया का हो गया, देन आपका आपका जापान के लिए ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपका जापान का हो गया। इसमें आपको दो इंडिविजुअल दिख रहे हैं, दो इसमें फील्ड प्लॉट हुए हैं, एक जापान हुआ है, एक इंडिया हुआ है, ठीक। एक जापान और एक इंडिया हुआ है, ठीक है। इसमें दो चीज प्लॉट हुआ है फॉर अ सिंगल ईयर, ठीक है। एक ईयर में आपको 2-3 कंट्रीज का दिखा दिया गया है, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा बस ये सिंपल चीज है भाई, तुमको समझना है कि भाई 1 साल में, यहाँ भी देखो जैसे कि इधर 1 साल में, लेट मी चेंज द कलर, हाँ। तो यहाँ 1 साल में इन 1 ईयर यह दी नॉर्थ सेंट्रल लोअर सेकेंडरी एजुकेशन रेड रिवर डेल्टा, ओके, इसका परसेंटेज दिखाया गया है कि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें 1 साल का है, ठीक है। सपोज 1 साल का कंसिडर कर ले ड्यूरेशन, तो यहाँ 1 साल का ड्यूरेशन शो किया गया है 3-4 आपका चीज का, ठीक है। 3-4 चीज का डेटा शो हुआ है, तो ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा क्रॉस सेक्शनल डेटा, उसका डिफरेंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड आपका टाइम सीरीज डेटा, तो इनमें डिफरेंस क्या आपको समझ में आया? आपको इसमें डिफरेंस क्या समझ में आया? डिफरेंस ये है कि क्रॉस सेक्शनल डेटा में आप मोर देन वन फील्ड लेते हैं। आप मोर देन वन, जैसे आप कंट्री का रेस्पेक्ट में सोचिए, आप उसमें मोर देन वन कंट्री लेते हैं, जैसे जापान, इंडिया, अमेरिका, उसमें एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जैसे आपका 1 ईयर, उसमें फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हो गया, देन यू इंटरप्रेट दैट डेटा। वेराज इन टाइम सीरीज डेटा व्हाट डू you take the growth of a country for several years, okay, for several months or years। अब उसमें ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ता है, और ड्यूरेशन जो वहाँ होता है वो यूनिफॉर्मली बढ़ता है, एंड द ट्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज शोन। द ट्रेड और द टाइम सीरीज और द जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज ऑफ ओनली वन कंट्री इज शोन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ओके। इसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा, कि सबका एक साथ मिला के एक ही ईयर में आपको दिखाना है। जब कंपेयर करना होगा देन क्रॉस सेक्शनल डेटा इज यूज्ड। व्हेन आपको अपना ग्रोथ देखना है तो टाइम सीरीज डेटा इज यूज्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। So here, what does this mean? Nominal data, ordinal data, interval and ratio. Qualitative data में ordinal and nominal आता है. Quantitative data consists of ratio data and interval data. Okay. What does this mean? Nominal data. Let's see from nominal data. As it is qualitative, so category इतना याद है, ठीक है. And quantitative means numeric, ये भी याद है आपको, ठीक है.
तो कैटेगरी होगा तो क्या होगा, कैटेगरीज नो ऑर्डरिंग ऑन डायरेक्शन। नॉमिनल डेटा में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, कोई भी रैंकिंग नहीं होगा, बस एक कैटेगरी होगा, ठीक है। जैसे नॉमिनल क्या हो गया, नेम कैन बी नॉमिनल, एज नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, जेंडर कैन बी नॉमिनल, ओके, यहाँ रैंकिंग नहीं है। देन ऑर्डिनल डेटा ऑर्डर्ड कैटेगरीज, रैंकिंग, ऑर्डर और स्केलिंग, ठीक है। जैसे आपका इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सीलेंट, गुड एंड पुअर, ठीक है। These are categorical, excellent, good, poor are categorical, right? Categorical first proof हो गया। Then excellent मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। Good मतलब अच्छा, खराब, poor मतलब खराब। तो यहाँ कैटेगरी में डिवाइडर रैंकिंग है, पहले एक्सीलेंट आता है, फिर गुड आता है, फिर देन पुअर आता है, ओके। देन इंटरवल डेटा इज न्यूमेरिक, क्वांटिटेटिव, सो here the data must be in numeric, okay, difference between the measurements but no true zero। इंटरवल डेटा का जो इंटरवल होता है वो कभी जीरो होता है। जैसे कि आप एक कंसिडर कर रहे हैं, आप एक तो जैसे कि आप कंसिडर कर रहे हैं कोई इंटरवल, सपोज आप इंटरवल चूज करते हैं 1 to 12, इसका डिफरेंस जीरो तो हो नहीं सकता है। अगर आप जीरो ही डिफरेंस हो जाएगा तो आप उसको आप इंटरवल कैसे लेंगे। अगर इसका आप इंटरवल ही जीरो कर देंगे तो आप उसको इंटरवल ले ही नहीं सकते हैं। सो नो ट्रू जीरो इज इन्वॉल्व इन इंटरवल डेटा, ओके। सिमिलरली अब रेशियो डेटा क्या होता है, रेशियो डेटा डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट, ट्रू जीरो एग्जिस्ट, 1:1, ट्रू जीरो एग्जिस्ट, राइट, डिफरेंस बिटवीन दी मेजरमेंट्स, ओके। अब आप आगे देखेंगे, समझ में आएगा। और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो मैंने अभी बताया, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। रेशियो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, रेशियो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। नॉमिनल में क्या होता है, नेम्ड वेरिएबल्स आ गया। ऑर्डिनल में क्या होता है, नेम प्लस ऑर्डर्ड वेरिएबल्स आ गया। इंटरवल में क्या होता है, नेम प्लस ऑर्डर्ड प्लस प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन दी वेरिएबल्स, ठीक है। रेशियो में क्या आ गया, नेम भी आ गया, ऑर्डर्ड भी आ गया, प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स भी आ गया, एंड कैन एकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो विच कैन बी जीरो, ठीक है। तो रेशियो क्या है, रेशियो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, रेशियो, ठीक है, इंटरवल, ठीक है, ऑर्डिनल, ओके, एंड नॉमिनल, ठीक है। आप इस हिसाब से समझिए, ठीक है, आप इस हिसाब से समझिए। देन नेक्स्ट शिफ्ट टू दी अनदर नॉमिनल स्केल। फिर से मैं वही चीज़ है इसमें थोड़ा आपको, अब देखिए ये हो गया आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का, आपको इसमें पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, तो इसको समझने में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। When the data for a variable consists of labels or names used to identify the characteristics and observation, the scale of measurement is considered a nominal scale. When when a scale is considered as nominal, when the data or variable are referred to as names or labels, जब एक डेटा को आप लेबल करते हैं एक नाम या फिर कुछ जेंडर, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम, बोर्ड, जेंडर, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, ठीक है। देर इज नो ऑर्डरिंग इन द वेरिएबल नेम कैटेगरीज विदाउट वेरिएबल, नो ऑर्डरिंग, ठीक है, कोई रैंकिंग नहीं होता इसमें, देर इज नो रैंकिंग इन नॉमिनल डेटा, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल, व्हाट इज ऑर्डिनल स्केल, डेटा एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल डेटा, प्रॉपर्टी जो होता है नॉमिनल डेटा का होता है, एंड द ऑर्डर और रैंक ऑफ डेटा इज मीनिंगफुल, सो हियर रैंकिंग सिस्टम इज देयर, यहाँ रैंक का एक तो सिस्टम होता है, ठीक है, विच इज मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे रैंक, नहीं, विच शुड बी मीनिंगफुल। द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज कंसिडर्ड एन ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। ईच कस्टमर हु विजिट्स अ रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स अ सर्विस रेटिंग ऑफ एक्सलेंट, गुड और पुअर, ऑर्डिनल नेम कैटेगरी दैट कैन बी ऑर्डर्ड। व्हाट डज दिस मीन, ऑर्डिनल स्केल का एग्जांपल होता है जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो आपको बोलता है ना, वेटर कम्स एंड आस्क यू हाउ वाज द फूड, वाज इट गुड, वाज इट एक्सीलेंट, और वी नीड टू हैव सम इम्प्रूवमेंट, आप पूछता ही होगा। तो ये जो होता है इसको आप एक तो रैंकिंग डिवाइड कर रखा है उन्होंने, कि हाँ पुअर होगा तो वो इम्प्रूव करेंगे, एक्सीलेंट होगा तो वो ट्राई टू मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सीलेंट, पुअर एंड गुड आर ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। लेट्स गो टू द इंटरवल स्केल विच इज न्यूमेरिक, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, न्यूमेरिक, क्वालिटेटिव, you all need to remember this, okay. If the data have all the properties of ordinal data and the interval between the values is expressed in terms of a fixed unit of measurement, then the scale of measurement is interval scale.
Let's understand with this example. Interval data are always numeric. Very important. Ratios of values have no meaning here because the values of a zero is arbitrary. ठीक है, जीरो नहीं होता है इसलिए arbitrary. Interval, numerical values that can be added or subtracted. No absolute zero. मैंने पहले कहा था 1/1 और 12 के बीच में क्या होगा, ये ऐड भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये होना नहीं चाहिए. रेशियो स्केल, आप इंटरवल पकड़ लीजिए ना, जैसे कि आपका हो गया, आपका क्लास का ड्यूरेशन हो गया. आप सपोज 1:30 से क्लास कर रहे हो, विच गोज अप टू 2:30. दिस इज एन इंटरवल. ठीक है. रेशियो स्केल, if the data have all the properties of the interval data and the ratio of two values is meaningful, then the scale of measurement is a ratio scale. For example, height, weight, age, marks, etc. Ratio, numerical values can be added, subtracted, multiplied or divided, makes ratio comparisons possible. ठीक है. हाइट, वेट, एज, मार्क्स, ये सब जो है आपका रेशियो स्केल में आता है. ठीक है, एक तो मीनिंगफुल रेशियो होता है. ठीक है. अब इसको बहुत मैंने डिटेल में समझाया, आप समझ गए होंगे. यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया what does nominal, ordinal and interval and ratio scale mean. Okay, so what is this? Okay, scales, nominal, ordinal, interval, ratio. अब इसको मैंने एक समराइज के लिए, समरी के लिए इसको डाला है इधर. ठीक है. डिस्क्रिप्शन, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल प्लस ऑर्डर, लेवल भी रहेगा, ऑर्डरिंग भी रहेगा, रैंकिंग. इंटरवल, लेवल, ऑर्डर, इक्वल डिस्टेंस यूनिट. ओके, एंड यस, इंटरवल मस्ट बी ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस यूनिट. आपका क्लास 1:30 से शुरू हुआ, 2:30 तक चला. ओके, देन आपका क्लास शुरू हुआ 2:40 से, देन ये चला 3:40 तक. जो डिफरेंस है दोनों का इक्वल है, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा. रेशियो में लेवल अंडर लेवल ऑर्डर, इक्वल डिस्टेंस यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो. 1:1 का एग्जांपल मैंने दे दिया है, जीरो हो सकता है. ठीक है. नेचर क्या होता है, नॉमिनल का क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल का क्वालिटेटिव, इंटरवल का क्वांटिटेटिव, रेशियो का क्वांटिटेटिव. व्हाट डज क्वालिटेटिव मीन? इट आल्सो मींस कैटेगरिकल. व्हाट डज ऑर्डिनल मीन? कैटेगरिकल. क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल, एंड क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल. रेशियो इज आल्सो न्यूमेरिकल. डेटा, discrete data, continuous. Interval and ratio are continuous data. Nominal and ordinal and discrete data. Discrete data क्या होता है? होल नंबर में जोड़ है, 2, 3, 4, 5. These are discrete. Okay. What is continuous? Continuous 2.4, 5.4. These decimals are continuous. Okay, ये continuous है. टेस्ट ये वाला छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है उतना. ठीक है. Examples are most important. You must have seen. Gender can be male or female. That is nominal. No ranking, nothing. It's a categorical. Eye color can be black, blue, green. Okay. For ordinal, height can be short, middle, tall. Height can be short, middle, tall. Ranking है. Customer satisfaction can be unhappy, neutral, and happy. Ranking is there. For interval, what is the temperature in your city? It can be below 0 degrees Celsius, between 0 to 20, between 20 to 40, above 40 degrees Celsius. ठीक है. डिफरेंस सेम है. What is your weight in kilograms? Less than 50, 51 to 100, and 101 to 150, and more than 150. ठीक है. Here absolute zero लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना. ठीक है. ट्रू जीरो एंड एब्सोल्यूट जीरो, ये सब ध्यान रखना होगा आपको. ओके. अब देखिए आपका नाउ week 1 I have summarized. Okay, I have discussed all the concepts of week 1 in detail. मैंने सारे concepts आपको डिटेल में समझाए हैं. आपको समझना है ये वीडियो और एक बार देखिएगा, आपको मैंने बहुत इजीली समझाया है. ठीक है. आपको मैंने कोई भी टेक्निकल भाषा में, हाँ टेक्निकल भाषा मैंने यूज़ करा है, लेकिन दैट वाज फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि यू नीड. आपको अगर आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप सिर्फ ईजी लैंग्वेज में रिलाई करें. ठीक है. यू ऑल्सो नीड टू रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो उसके लिए भी मैंने दोनों को फोकस किया, दोनों पे फोकस किया. सो प्लीज आप पूरा ठीक से देखिएगा एंड समझिएगा. ठीक है. तो फिर लेट समराइज इट इन 1 मिनट. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. व्हाट डज डिस्क्रिप्टिव मीन? डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है एक सैंपल रहता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं. ठीक है. दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. एंड उससे आप उसका जो सैंपल होगा आप दूसरे सैंपल में लगा नहीं सकते हैं. ठीक है. दूसरे सैंपल का आप
इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आप एक पॉपुलेशन रहता है, उसमें से आप एक ग्रुप निकालते हैं सैंपल, ठीक है, एंड दैट सैंपल से आप पूरी डेटा इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। एंड ये आप ये जो डेटा इंटरप्रेट करेंगे वो मोस्ट ऑफ दी सैंपल्स पे, आप पूरे पॉपुलेशन के जितने सैंपल्स है उस पे वैलिड रहेगा, ठीक है, उस पे वैलिड रहेगा। वेर एज डिस्क्रिप्टिव कैन नॉट। व्हाट डज डिस्क्रिप्टिव डेटा मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका आएगा सेकंड थर्ड वीक में, आपका ये सब आ जाएगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, मीन क्या होता है, मीन इज द एवरेज, मोड क्या होता है, मोड इज द टोटल कितना बार रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको मोड कहते हैं। मीडियन क्या कहते हैं, मिडिल वन, ठीक है, मिडिल में कौन, लाइक मिडिल 2 3 4 5 6, तो इसमें मिडिल क्या हो गया, 4 मिडिल है, ठीक है, मिडिल यू, तो इसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, वेरिएंस, डिस्पर्शन, ये सब का फॉर्मूला वगैरह बहुत है, ये आप वीक 3 में पढ़ेंगे, वीक 3 एंड 4 में, ओके। सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो पीपीटी का, ये पीपीटी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, इसका लिंक दे दूंगा, आप इससे लेक्चर्स का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखा है, ठीक है, उसी लिंक में आपको गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसमें आपको हर चीज़ का आपको डिवीजन मिल जाएगा। एंड यस, हम कल पीवाईक्यू अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे अपने गूगल ड्राइव लिंक पे, तो आप मेक श्योर वहाँ से पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड यस, आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यस यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो तुम लोग यार, भाई वीडियोस कितने जन देखते हैं, व्यूज कितने जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, कर लिया करो, ठीक है भाई, इतना मेहनत से बना रहे हैं, कर लिया करो। एंड इसका जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन का, ये हम कुछ दिन में रिलीज कर देंगे। आपका असाइनमेंट का डेडलाइन है 2, ठीक है, 2 तारीख आपका असाइनमेंट का डेडलाइन है, 2 अक्टूबर, तो मेक श्योर अब उससे पहले सबमिट कर दीजिएगा असाइनमेंट्स, एंड मेंटेन 100% ऑफ इट। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, और ये 100% मेंटेन करने के लिए हम जो ग्रेडेड असाइनमेंट रिलीज करेंगे वाईटी पे, इसका डिटेल सोल्यूशन वो ज़रूर देख लीजिएगा, देन आप अपलोड कीजिएगा फाइनल वाला, ठीक है। तो चलिए, होप्स तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर अपने हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करके आप वो डाउट लिख दीजिएगा, ठीक है। और यस, मेन चीज़ है, बहुत ये चीज़ मैं बोलना भूल गया था, बुक्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड होंगे, ठीक है। सो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है। एंड संडे को आपका मैथ्स का बुक्स रिलीज होने वाला है, अनाउंसमेंट का वीडियो मैंने डाल दिया था, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, और हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो, थैंक यू, एंड होप सो समझ में आया होगा। चलो, बाय बाय।